Hello everybody, how are you all doing? It's freezing here. I don't know about वहाँ का, but it's freezing here. Right? बहुत ठंडी है. So yes, a very warm welcome to you all. किसकी तरह से Talking Textbooks Kota Live, leaving no child behind. This is Dr. Gitanjali Sharma, your biology faculty. Let's make biology super duper interesting, fun, exciting, and of course easy, simple है ना. क्योंकि biology जो है ना बच्चों, actually that's an easy subject, ठीक है, difficult नहीं है. थोड़ी terminologies में maybe difference पड़ता हो, but biology is my personal favorite. Well, of course it has to be, but yes, it gets you into a lot many depths of this earth, है ना. ठीक है. So yes, अभी थोड़ा सा for the new students, for the newbies, whosoever are new here, I'll just like to tell a few things here about the Talking Textbooks as a platform. So guys, most of you know about Talking Textbooks, but of course I take a lot great privilege in talking about it back and forth. So yes, we not only get you prepared for your school examinations छठी से 10वीं कक्षा तक, पर ऑल्सो ओलंपियाड्स जो कि हैं आपके 6th, 7th एंड 8th स्टैंडर्ड्स के लिए, और जो हमारा जो प्राइम यू कैन से समथिंग विच इज़ वेरी मच एसेंचुएटेड इज योर एग्जामिनेशन, लाइक द प्रिपरेशंस फॉर NTSC, NSE JS and PRMO. ठीक है बच्चों, ये examinations की what I say always is that one must of course appear for these examinations, right? So even if you guys are not getting through, see, it's not always about passing or failing, but it's always about adding up into a journey. All right, so some or the other way आप कोई सा भी exam fight कर रहे हो, be it in fact a simple test, right, it is always adding up into your knowledge some or the other way. ठीक है, और उस preparation के लिए क्या material है, क्या matter है, क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या कुछ, and blah 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 blah, everything is here on this single platform, that is Talking Textbooks Kota Live, because we do not leave any of our childs behind. That is our motto and logo, leaving no child behind. So yes, introducing the amazing faculty of Talking Textbooks. Okay, so definitely most of you might be knowing about these faces, right? These brilliant faces, सबके सब आपको पढ़ाते हैं ना. Yeah, of course, कुछ आपके favorite teachers भी हैं. Everybody is your favorite, I really think so, including this one. Yes, this is something about me. So for the students who do not know about me, this is a little bit brief info about Dr. Geet or Dr. Gitanjali Sharma. Now moving ahead, see, जो भी बच्चे, ठीक है, कैसा भी एग्जामिनेशन हो बच्चों, whatever it is, whatever preparation you wanna go, okay, थोड़ा सा आपको अपनी नॉर्मल स्कूल स्टडीज से थोड़ा ऊपर प्रिपेयर करना है, या फिर अपनी सिर्फ स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करना है, या फिर कुछ ज़्यादा ही अच्छा प्रिपरेशन करना है, जैसे कि हमारे एग्जामिनेशंस होते हैं ना, NTSC, NSE JS, PRMO जैसे एग्जामिनेशंस के लिए. So Talking Textbooks is there for you at every step, all right, be it anything. So yes, can you see this logo? This is the Telegram handle of Talking Textbooks. यहाँ पे बच्चों कुछ लिंक्स दिए हुए हैं. अब यहाँ पे विजिट क्यों करना? सो कुछ बच्चे तो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं हमारे चैनल को, जिन्होंने नहीं किया है वो क्यों सब्सक्राइब करें इनको, है ना. अरे हम क्यों जाएंगे टेलीग्राम पे Talking Textbooks के? भाई ऑफ कोर्स, बिकॉज हियर यू गेट द सैम्पल मटेरियल, ठीक है. सो ऑल यू गेट इज द सैम्पल मटेरियल. यहाँ पे आपको एक्चुअली थोड़ा सा एक स्नीक पीक मिल जाता है दैट व्हाट इज देयर इन द ट्रेजर ऑफ Talking Textbooks फॉर यू गाइज एक्सक्लूसिवली. एंड कैन यू सी दीज लिंक्स हियर? ये जितने भी लिंक्स हैं ना डिफरेंट क्लासेस के, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th, all right. So यहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हो, वो मटेरियल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है. एंड देन अगर आपको पूरा का पूरा आपको अच्छा लगता है, एंड यू वांट टू गेट द एंटायर ऑफ, यू वांट टू ग्रैब इट ऑल, सिंपली विजिट टू www.talkingtextbooks.in. एंड देन यहाँ पे जो ये दो बॉक्सेस हैं, फॉर एवरीबॉडीज कन्वीनियंस वी आर मेड टू रियली गुड पैकेजेस फॉर यू गाइस. सो व्हाटएवर सूट्स यू द बेस्ट, यू कैन जस्ट ऑप्ट फॉर इट, क्लिक ऑन द बाय नाउ. एंड यहाँ आता है सबसे बेस्ट पार्ट, एंड दैट इज द डिस्काउंट थिंग. जहां पे मुझे दिख गया डिस्काउंट, OMG, I'm gonna just grab it like anything, right? So yes, even a 10% discount is too much for me. It's like, yes, at least I'm getting an off, right? So here, if you're using my code GS Live, you're gonna get 30% discount. Not only 10, not only 20, but yes, 30 is really a great number, right guys? So 30% discount. So apply my code GS
लाइव, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो चाहो तो, यस मैं अच्छे से स्क्रीन आपको दिखा देती हूँ. ऑलराइट, सो यस GS Live एंड देन एवरी पॉसिबल पेमेंट मेथड फॉर यू गाइज बिकॉज वी कैन नॉट लीव एनी ऑफ आवर चाइल्ड्स बिहाइंड, लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड. कोई भी तरीके का इनकन्वीनियंस किसी भी वे में, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर मटेरियल को अपने पास लेना हो, वी हैव प्रोवाइडेड ऑलमोस्ट एवरी पॉसिबल मेथड, दैट इज अ क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग एंड वॉलेट्स. चलो ठीक है. सो यस GS Live for 30% ऑफ एंड देन whatever suits you the best, द लाल वाला पैकेज और द पर्पल वाला पैकेज. ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे. ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं भाई. कार्डिनल प्रॉमिस as usual, the ritual of TDB, which I always call it as a promise to self. चलो खुद से प्रॉमिस करते हैं. कैसा प्रॉमिस? There we go. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. And I know my kiddos are already very smart and brilliant, but then again, what's there in adding up little bit to us extra in every day, है ना? वैसे ही हर चीज़ बहुत कॉस्टली, बहुत प्रेशियस होती है. सो कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा मिल रहा है तो एडअप करते जाइए. मूविंग अहेड गाइज, लास्ट क्लास में हमने बोन्स के बारे में पढ़ा था. वो भी कहाँ की? एक आर्म में कितनी बोन्स होती हैं, है ना? अपेंडिकुलर सिस्टम हमने देखा था. अपेंडिकुलर सिस्टम में हमने गर्डल्स देखे थे, पेक्टोरल, पेल्विक एंड देन द बोन्स ऑफ द लिम्स. ऑलराइट, सो आई स्ट्रेट फॉरवर्ड कम हियर. ठीक है, so I really hope guys you must have revised it because the number of bones, all right, what the number of bones, ठीक है, how many types are there, very very important. 5 types हमने देखा था, starting from the shoulder, humerus, radius, ulna, ठीक है, carpals, your carpals क्या होती हैं आपकी? What are your carpals of the wrist? Metacarpals, phalanges, all right, and then thumb. Thumb वाली भी phalanges में count होती है, but बाकी सारी fingers में we have got 3 bones each, but then thumb में you've got just 2, all right. चलो आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे पैरों में कितनी bones होती हैं, ठीक है ना? हाथों में कितनी होती हैं? 30 per hand, so 16 both, and then similarly goes with your feet, your legs as well. ठीक है, यही पढ़ेंगे. अब देखो bones of legs, ठीक है, कौन कौन सी होती हैं बच्चों? यहाँ पे इसको लिख लो, साथ साथ में लिखते चलना. This is your ankle. Okay, I'm writing it here. ANKLE. The spelling is wrong. Ankle bones. Alright. देखो यहाँ पे लिख लो कितनी टाइप की बोन्स होती है लेग्स में. You got your femur, which is your thigh bone. फीमर को क्या बोलते हैं? फीमर कौन सी बोन है आपकी? थाई में. ऑल राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम योर हिप रीजन टू योर नीज इज योर थाई बोन, दैट इज योर फीमर. लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, सबसे बड़ी और तगड़ी बोन जो होती है आपकी कौन सी होती है? फीमर. ठीक है, दिस इज एन एडिशनल पॉइंट. फीमर इज दी लार्जेस्ट बोन. आगे एड ऑन करेंगे. ठीक है, अभी नाम लिख लो फीमर. देन सी, हमने बच्चों आर्म में देखा था कि एल्बो से लेके रिस्ट तक देयर वर 2 बोन्स. देयर वर योर रेडियस एंड योर अल्ना. रेडियस जो था थंब के अलोंग या फिर आउटर साइड ऑफ द आर्म, एंड अल्ना टुवर्ड्स द इनर साइड और टुवर्ड्स द स्मॉलर फिंगर, है ना? सिमिलरली लेग में भी होती हैं आपकी 2. कौन सी? टिबिया एंड फिब्यूला. इनका लोकेशन वील सी, बट राइट डाउन द नेम्स. टिबिया एंड फिब्यूला, दे बोथ आर डिफरेंट, लेकिन एक ही रीजन में लाई करती है. कहां पे? फ्रॉम द नी टू कहां तक? हमारा जैसे रिस्ट का जॉइंट था, रिस्ट तक. ठीक है, सिमिलरली हमारे जो जहां से हमारा फुट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और जहां पे हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है? फुट स्टार्ट हो रहा है. ऑल राइट, सो द जॉइंट, फुट जॉइंट. अभी सिर्फ इतना लिखो, we'll see in the diagram ahead, all right, and then your ankle bones, ankle तक जो है, ठीक है. So yes, you can also call it as ankle, to your ankle, जहाँ पे आपका foot joint है, all right, and then the bones of sole and toes, ठीक है, bones of the sole and the toes. जैसे if I talk about this, okay, this is a rough diagram. Okay, I'm very bad at this, so this looks like something पता नहीं क्या, लेकिन yes, toes और जो सोल है वो ये यहाँ पे जो बोन्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे जो होंगी वो आपकी एंकल बोन्स. ऑल राइट, ठीक है. देन उसके बाद यहाँ पे टिबिया, फिब्यूला, यहाँ पे आएगी आपकी नी, और ऊपर जाओगे तो फीमर. अब इसको हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस. ऑल राइट, सो हाउ मेनी बोन्स? अगेन 5 टाइप्स. हाउ मेनी? 5. फीमर,
टिबिया, फिब्यूला, एंकल बोन्स एंड देन सोल एंड टोज की बोन्स. ठीक है, अब देखो फीमर से स्टार्ट करते हैं. फीमर से स्टार्ट करते हैं. सी, थाई बोन. फीमर क्या होती है? थाई बोन. और फीमर लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, है ना? ठीक है, राइट इट डाउन. इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज में ऐसे उठ के आ जाएगा. कौन सी होती है लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी? दैट इज योर थाई बोन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फीमर. द मेडिकल टर्मिनोलॉजी फॉर दैट इज योर फीमर, FEMUR. ठीक है, अब देखो बच्चों, हमारा जो लेग है ना, सो इट फॉर्म्स द जॉइंट. मैंने क्या बताया था आपको? गर्डल्स क्या करते हैं? गर्डल्स आर विच कनेक्ट्स योर लिम्स, यानी कि योर आर्म्स एंड योर लेग्स टू वेयर योर गर्डल्स. ऑल राइट, सो दे आर योर गर्डल्स. बेसिकली वो आपको बॉडी को कनेक्ट कर रहे हैं ना. सो यहाँ पे हमने शोल्डर्स पे देखा था, कौन सा था? पेक्टोरल गर्डल, राइट. एंड नीचे क्या था? abdomen में, दैट इज योर pelvic girdle. सो आपकी बोन जो आपके फीमर को कनेक्ट करती है, कहाँ पे? हिप जॉइंट पे. ठीक है, उसका जो बॉल शेप्ड जो एंड होता है, वील सी द इमेज, द डायग्राम हियर. ठीक है, सी, कैन यू सी दिस? ये देखो, ये रही आपकी फीमर. ये रही आपकी फीमर. सी, इसका ये एंड देख रहे हो बच्चों? इसका ये हेड देख रहे हो कैसा है? हाउ इज इट? दिस इज योर बॉल शेप्ड, है ना? एकदम इस तरीके से है. कैसे है? इस तरीके से, बॉल शेप्ड, इस तरीके से. तो इसका जो हेड होता है, दिस पोर्शन वुड फॉर्म योर पेक्टोरल गर्डल. ऑल राइट, क्या बनाएगा? पेक्टोरल गर्डल. सो दिस पोर्शन, यानी कि फीमर का जो बॉल शेप्ड एंड होता है, दैट इज कनेक्टेड टू योर पेक्टोरल गर्डल. कैन यू मेक आउट? दैट्स व्हाट इज रिटर्न हियर. राइट इट डाउन. अपर बॉल शेप्ड एंड इज कनेक्टेड टू द पेक्टोरल गर्डल. The upper ball shaped end is articulated with the hip girdle. ठीक है, उसके साथ क्या होता है? articulate, यानी कि इस तरीके से कुछ मोशन होता है, इस तरीके से उनका कुछ मोशन होता है, that it forms a joint. So basically it's articulating. Okay, then lower end जो होता है फीमर का, वो जॉइंट होता है किससे? वो कनेक्टेड होता है किससे? कैन यू सी दिस? एंड देन द लोअर एंड, सी, दिस इज द लोअर एंड. दिस इज दी लोअर एंड. ये पूरी की पूरी आपकी हो गई क्या? फीमर, है ना? यहां से लेके ये पूरी हो गई फीमर, जहां तक आपका थाई है. एंड देन आपकी नी पे जो बोन आती है बच्चों, उसको बोला जाता है पटेला. PATELLA. You can just add it. You can just add it. Patella is your knee bone. नी पे जो बोन होती है, that is your knee bone. You can even feel it. ठीक है, अलग से यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है बच्चों? नी कैप. Patella is also called as your knee cap. Write it down. Write it down. This is not given here. Write it down that the bone which is covering your knee is called as your patella. ठीक है, and it is also called as kneecap. PATELLA, patella, and then it's also called as the kneecap. Write it down. ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? सी, ये रहा फीमर का आपका हेड पोर्शन विच इज बॉल शेप. सो अपर पार्ट ऑफ दैट इज कनेक्टेड टू दी पेक्टोरल, सॉरी दी पेल्विक गर्डल, राइट, है ना? आर्टिकुलेट हो रहा है वहां पे. एंड देन द लोअर पार्ट इज कनेक्टेड टू योर टू बोन्स, दैट इज योर टिबिया एंड फिब्यूला. सो यहीं पर हमें टिबिया एंड फिब्यूला की क्या पता चल गई बच्चे लोग? लोकेशन भी पता चल गई. कैन यू सी दिस? आई विल जस्ट जूम इट आउट फॉर यू. Yes, wait, I'll just zoom it for you guys. See this? Can you see this? Can you note? See, knees तक यहाँ पे आ गई आपकी patella, that is your knee cap, right? And then knee to your ankle. ठीक है, knee to your ankle is your tibia and fibula. Now make it a point बच्चा लोग, that is tibia. जैसे हमने क्या देखा था अपने आर्म में, radius and ulna are present from your elbow to your wrist joint. Similarly tibia and fibula are present from your knee to your ankle. ठीक है, from your knee to your ankle. अब इसमें tibia का लोकेशन क्या है and fibula का लोकेशन क्या है? So along the toe, अंगूठे की साइड पे जो बोन है, ये बड़ी सी जो है ना, जो मोटी और ये बड़ी है, this one. See, can you see this? This one.
दिस वन, ओके, सो दिस इज योर टिबिया, इसको क्या बोला हमने, टिबिया, ऑल राइट, एंड जो ये पतली सी बोन है ना विच इज टूवर्ड्स द स्मॉलर फिंगर, दिस वुड बी योर फिब्यूला, एंड बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट इन योर लोअर लेग, दैट इज फ्रॉम द नी टू द एंकल। टिबिया कौन सी हो गई, विच इज द लार्जर वन, थिकर वन, ठीक है, टूवर्ड्स दी टो, ऑल राइट, और जो छोटी फिंगर की तरफ हुई ये वाला है ना, दिस इज योर फिब्यूला, गेटिंग माई पॉइंट, ओके, सो यस वी हैव डिस्कस द लोकेशन हियर, एंड देन फीमर का क्या लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे, कि फीमर जो है आपका, वो फीमर इज कनेक्टेड टू दी लोअर एंड, इज जॉइंट, उसका जो लोअर एंड है दैट इज जॉइंट पहले तो किससे, आपके नी कैप, पटेला से, एंड देन नीचे टू टिबिया एंड फिब्यूला, मूविंग अहेड, देखो यहाँ पे, ठीक है, अब देखो टिबिया एंड फिब्यूला का मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, बिटवीन नी एंड एंकल, कहाँ प्रेजेंट होती है ये, बिटवीन द पार्ट बिटवीन द नी एंड द एंकल, राइट, करेक्ट है, नी और एंकल के बीच में जो बोन्स है, ठीक है ना, एंड टिबिया, सी राइट अबाउट टिबिया, टिबिया के बारे में क्या लिखा हुआ है, दैट इट इज थिक एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, and it is thick and strong which is present towards the inner side, हमारे toes हमारी body के inner side पे होते हैं, जो smaller finger है वो outer side, so it is thick and strong which is present towards inner side or towards big toe यानी कि हमारा अंगूठा, ठीक है ना, उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम दिया गया है, दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर शिन बोन, व्हाट इट इज कॉल्ड एज बच्चों, इंपॉर्टेंट, राइट डाउन, अ वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैन बी केप्ट फ्रॉम हियर, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज योर शिन बोन, इंपॉर्टेंट, राइट डाउन, ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, दैट इट इज थिक, strong and present towards inner side or towards the bigger toe, and it's also called as your shin bone, all right, important. Similarly fibula के बारे में क्या लिखा हुआ है, बेचारी बहुत पतली सी होती है, कैसी होती है, it's thin and it is weak and also thin and is present towards the outer side, and also बच्चों actually fibula जो है ना, it's very thin, so it's like इतना ज़्यादा यूज में नहीं होती है, राइट, सो मैक्सिमम पैरों का आपका जो भार है, ओके, द मैक्सिमम वेट और द कैरिएज इज मोस्टली लोडेड ओवर योर टिबिया, सिंस ज्यादा वेट आपका कौन कैरी कर रहा है यहाँ पे, टिबिया, फिब्यूला सिर्फ एक सपोर्ट दे रही है, ऑल राइट, सो मेजर फंक्शन वुड बी ऑफ दिस टिबिया, ऑल राइट, ठीक है, चलो जी, मूविंग अहेड, नाउ द एंकल बोन्स, सी सबसे पहले एंकल बोन्स को क्या बोलते हैं बच्चों, टार्सल्स, ठीक है, क्या बोला, टार्सल्स, ठीक है ना, देखो यहां पे टार्सल्स, राइट, और हमने जब हमने आर्म के लिए पढ़ा था तो रिस्ट की बोन्स को हमने क्या बोला था, कार्पल्स, कैन यू सी दिस इज योर कार्पल्स, है ना, सिमिलरली रिस्ट की बोन्स को बोला था, सी हाउ डू दे राइम, दिस इज कार्पल्स, इन लेग्स में गए तो टार्सल्स, ऑल राइट, नाइस वे टू रिमेंबर, है ना, ठीक है, so they are also called as tarsals. Similarly यहाँ पे जो कार्पल्स थी, ठीक है, कार्पल्स कितनी थी बच्चों नंबर में, 8, हाउ मेनी वर दे, 8, सो रिस्ट पे, ठीक है, जो ये जॉइंट बना रहा है ना, उसमें कितनी बोन्स है, 8, लेकिन टार्सल्स दे आर 7, ओके, हाउ मेनी आर दे, टार्सल्स आर 7, राइट डाउन, कितना होता है, 7 बोन्स, ऑल राइट, सिमिलरली बच्चों हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमने यहाँ पे देखा था कि हमारी पाम की जो बोन्स होती हैं, पाम्स जो हमारा जिन बोन से बनता है उनको हमने क्या बोला था, मेटाकार्पल्स, एंड रिस्ट की बोन्स वर कार्पल्स एंड पाम की वर मेटाकार्पल्स, यर जो एंकल की बोन्स हैं दे आर टार्सल्स, सो सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या ऐड कर देंगे, मेटा, सो सोल की जो बोन्स हैं कौन सी, कैन यू सी दिस, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया था, ये वाली, है ना, सो ये सोल की, जिससे कि आपका सोल बन रहा है, ठीक है, सोल की बोन्स को आपने क्या बोला, मेटाटार्सल्स, ऑलराइट, राइट इट डाउन, इंपॉर्टेंट, द टर्मिनोलॉजीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है,
So how many are they? Your metatarsals, and each toe has 3 bones while there are 2 bones in each big toe. जैसे हमारे जो thumbs, like this is how we do, like thumbs up, है ना? So ये thumbs में there are 2 bones, rest fingers में there are 3 bones. Similarly जो हमारी foot की जो fingers होती हैं, alright, they all are called as your toes, okay? है ना? तो जो बड़ा वाला टो है, जो आपका अंगूठा जिसे बोलते हैं, उसमें कितनी बोन्स है? 2. रेस्ट में है 3. सो राइट इट डाउन, इंपॉर्टेंट. ईच टो हैज 3 बोन्स while there are 2 bones in each big toe. बिग टो यानी कि आपका कौन सा टो? विच टो? बड़ा वाला अंगूठा. ऑलराइट, चलो मूविंग अहेड, है ना? अब देखो जैसे हमने पहले सारा देखा था, राइट? सो हियर व्हाट वी आर गोना डू दिस कि इस टेबल में वी आर गोना इनकॉर्पोरेट ऑल दी नंबर, ऑलराइट, ऑल दी नंबर ऑफ बोन्स हियर, ठीक है ना? वापस से हम यहाँ पे नंबर्स देख लेते हैं. अगेन बच्चे लोग, दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए इसको बना के रखो. जैसे हमने आर्म की बोन्स देखी थी, सिमिलरली यहाँ भी हम टोटल बोन्स काउंट करेंगे, किसका क्या नंबर है. ऑलराइट, ठीक है? स्टार्टिंग विद योर थाई बोन विच इज योर फीमर. लोकेशन हिप और नी के बीच में. कहाँ पे? हिप और नी के बीच में. नाम क्या था? फीमर. इसके बारे में हमने एक और फैक्ट पढ़ा था, इट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी. सो स्ट्रेट क्वेश्चन हियर, which one of the following is the longest bone of the body? Options goes your humerus, then your fibula, third one would be your femur, and fourth one your metatarsals. So you will be selecting the option C, that is your femur or your thigh bone. Location hip and knee के बीच में, ठीक है? Now comes is your tibia and fibula and knee bone. Okay, so देखो बच्चों, फीमर दोनों पैरों में कितनी हुई? एक, है ना? अगर हम एक लेग की बात करें, एक लेग में कितनी फीमर हुई? 1. ओके, नाउ लोअर लेग और काफ बोन, ठीक है? लोअर लेग, ठीक है? लोअर लेग यानी कि फ्रॉम द नी टू द एंकल, ठीक है? उस रीजन को आप काफ रीजन भी बोलते हो. क्या बोलते हो? काफ्स. ओके, एक सिंगल काफ एंड plural when we talk about 2 legs that would be CALVES, calves. Okay, now वहां पे हमने देखा था कितनी बोन्स है हमारी? टिबिया 1, फिब्यूला 1 और नी बोन 1, ठीक है? नी बोन 1, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर पटेला, जिसका मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या है? दैट इज योर पटेला. आई मेड यू राइट दिस हियर, है ना? सो आई होप सबने लिख लिया होगा, PATELLA, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर नी कैप. ओके, सो क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है, दैट विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग बोन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर नी कैप? फीमर, टिबिया, फिब्यूला और योर पटेला. आंसर वुड गो पटेला. ऑलराइट, सो दिस इज एन एडिशनल पॉइंट, प्लीज राइट इट डाउन. किसी ने नहीं लिखा हो तो उनको इंक्लूड करके एक टिबिया, एक फिब्यूला एंड 1 पटेला would count to how many? They would count to your 3 bones in total. ठीक है, अभी तक 4 हो गए. देखो अब एंकल पे हमने देखा था बच्चों टार्सल्स, है ना? टार्सल्स का कितना नंबर है? एंकल जिन बोन से मिलके बन रहा है उसको आपने बोला टार्सल्स. एंड हाउ मेनी वर दे? वी रेड 7, राइट? सिमिलरली सोल बोन्स को हमने क्या बोला था? मेटाटार्सल्स. एंड हाउ मेनी आर देयर? जैसे हमारे पाम में 5 फिंगर्स हैं, राइट? हमारे एक पाम में हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर? 5. सिमिलरली देयर वर 5 मेटाकार्पल्स, राइट? कार्पल्स, है ना? आर्म के लिए कार्पल्स. सिमिलरली लेग में we've got 5 toes, right? How many? 5 toes. So your metatarsals are also going to be 5 in number. All right, then your toes, that is phalanges. All right, how many? Phalanges. अब बच्चों जैसे यहाँ पे हमारी जो फिंगर्स थी, हमने पढ़ा था सारी फिंगर्स में कितनी बोन्स होती हैं? पर फिंगर 3, ठीक है? So number of fingers are 4. So 4 into 3, 12. All right, that means 12 fingers in 4 bones including 2 in thumb. थंब में सिर्फ 2 होती हैं. सिमिलरली हमारे पैर में जो बिगर टो है, अंगूठा है, उसमें सिर्फ 2 बोन होती हैं. रेस्ट सारी जो छोटी फिंगर्स हैं या फिर उनको हम टोज बोलते हैं, उनमें होती हैं 3. सो हियर वी सी टोज, ठीक है? उनको क्या बोला हमने? फैलेंजेस. ऑलराइट, सिमिलरली आर्म में भी हमने फैलेंजेस बोला था, है ना? और यहाँ पे भी हमने क्या बोला? फैलेंजेस. ओके, द बोन्स ऑफ फिंगर्स फॉर बोथ आर्म्स एंड योर लेग्स वुड बी कॉल्ड एज योर phalanges, the same terminology. All right, तो कितना हुआ? Similarly 4 into 3,
12 एंड आपके अंगूठे यानी कि बिग टो में कितनी हुई 2, ठीक है. सो हाउ मेनी 12, sorry, this is written 2 in each, है ना. so this would be your 2. all right, so जब टोटल किया तो यहां पर भी like your hand और your arm कितना निकला 30. ओके, दैट मीन्स हर एक लेग में आपकी 30 बोन्स होती हैं, जैसे कि आपके एक हैंड में या फिर आर्म में होती है. सो दोनों आर्म्स की बोन्स मिला के कितना हुआ 30 into 2 because 30 in each hand 60. Similarly with your legs as well. ठीक है, per leg you've got 30 bones and then 30 into 2 would count to 60. Make out this. इसको अच्छे से बना लो. किसी ने टेबल नहीं बनाया है, इसको बना लो. 1 मिनट, है ना. यस, इस टेबल को बना लो. स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो. ठीक है, सो आई होप इट्स डन. नाउ अब हम पढ़ेंगे हमारे जोड़ों के बारे में. ठीक है बच्चों, हमारी बॉडी में मोबिलिटी क्यों है, किसकी वजह से है. सी, बोन्स हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर दे रही हैं. ठीक है, ओके. सो वी आर एबल टू मूव एंड हैव एन इरेक्ट posture because of our skeletal system in the body, right? And skeletal system is composed of our bones, of course. Okay, but मान लो कि हमारे joints ही नहीं है. ठीक है, joints ही नहीं है ना, तो आप इस आर्म को इधर से उधर भी नहीं हिला पाते हो. So the reason why we are able to walk, ठीक है, I'm able to tilt my head up and down, I'm able to move this arm, ठीक है, this is all because of joints. okay, so joints की वजह से ही हमारी बॉडी में क्या आती है, मोबिलिटी. so मोबिलिटी हमारी बॉडी में मूवमेंट कर पा रहे हैं because of the joints along with the coordinated motion of our muscles. लेकिन इंपॉर्टेंस हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, मेजर joints of the body. Now let us just highlight certain important points. ठीक है बच्चों, joints का definition लिखो. ऐसे places, such places where 2 or more bones join with each other are known as joints. ठीक है, write it down. What are your joints? Joints are places, such places, okay, or you can say areas in our body जहां पे कि दो या उससे ज्यादा बोन्स मिलके बनाती हैं. ठीक है, क्या बनाती हैं, दे आर योर जॉइंट्स. ऑलराइट, है ना. मीटिंग प्लेसेस ऑफ 2 और मोर बोन्स को लिख लो आप ब्रैकेट में. ऑलराइट, अब बच्चों बॉडी में जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जॉइंट्स क्या हो, मोबाइल हो. मोबाइल हो यानी कि मोबाइल मतलब सेल फोन नहीं, मोबाइल से और भी कुछ मतलब हो सकता है. दैट इज योर मूवमेंट. ठीक है, एक ही जगह दिमाग नहीं. ठीक है, सो कितने टाइप के जॉइंट्स हो सकते हैं आपकी बॉडी में, दे कैन बी योर, फर्स्ट इज योर मूवेबल जॉइंट और दूसरा इमूवेबल. यस, जरूरी नहीं है कि सारे जॉइंट्स जो हैं मोबाइल हो यानी कि मूवेबल हो. ऑलराइट, अब पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द मूवेबल जॉइंट्स. सो राइट डाउन द हेडिंग, दैट इज योर मूवेबल जॉइंट्स. क्या होते हैं बच्चे लोग मूवेबल जॉइंट्स? सिंपल, जो बोन्स को मूव करने में हेल्प करें वो मूवेबल जॉइंट्स. अलाउज बोन टू मूव आर कॉल्ड मूवेबल जॉइंट्स. लिख लो, इजी सा है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है, राइट? है ना. अब जरूरी नहीं है बच्चों, देखो मूवेबल जॉइंट्स में क्या होता है ना, इट्स नॉट नेसेसरी कि जो मूवमेंट हो वो पूरा हो सकते हैं सर्टेन जॉइंट्स विच आर मूवेबल बट देन बहुत लिटिल मूवमेंट अलाउ करते हैं. ठीक है, बहुत छोटू सा करते तो है ना, तो इसीलिए उनको हमने क्या नाम दिया, मूवेबल. ऑलराइट, ठीक है, जैसे कौन कौन से, अगर हम यहाँ बात करें, हम अपनी फिंगर्स को मूव कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये जॉइंट है हमारा पाम से हमारी फिंगर में, ठीक है, फिंगर की बोन्स का एक दूसरे के साथ, राइट, कैन यू सी दिस, आई एम एबल टू मूव इट, राइट, एंड देन आई एम एबल टू मूव माई एल्बो दिस वे.
ठीक है, रोटेट माई आर्म दिस वे। सो ये सारे जॉइंट्स, कौन सा आपका, शोल्डर, एल्बो, फिंगर, रिस्ट, राइट, नेक से आपके शोल्डर का, तो ये सारे जॉइंट्स क्या हो गए, मूवेबल। देखो, सो एग्जांपल्स क्या लिखोगे, नी, एल्बो, एंकल, नेक, फिंगर्स, एक्सेट्रा। ठीक है, राइट इट डाउन क्विकली, जल्दी लिख लो। ठीक है, आसान सा है, बढ़े क्या, चलो बढ़ लेते हैं। ओके, सो इमूवेबल जॉइंट सिमिलरली इजी है। देखो क्या होता है भाई, मूवेबल जो अलाउ कर रहा है, इमूवेबल जो कि अलाउ, डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट ऑफ द बोन्स। वो जॉइंट्स जो कि बच्चों, जॉइंट्स बच्चों, उसका बेसिक डेफिनेशन वुड रिमेन द सेम। ऑलराइट, व्हाट आर जॉइंट्स, जो कि दो या उससे ज्यादा बोन्स जहां पे जाके मीट कर रही है, ठीक है, वो होगा आपका जॉइंट। अब वो मूवेबल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, सो जरूरी नहीं है कि बोन्स जहां मीट कर रही है वो मोबाइल ही हो, यानी कि मूवेबल ही हो, जरूरी नहीं है। सो ऐसे बोन्स जो मीट कर रहे हैं लेकिन वो मूवमेंट नहीं शो कर पा रहे, इमूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, राइट इट डाउन, उनको दे आर, मतलब ऐसे कुछ जॉइंट्स को आप क्या बोलते हो, सूचर्स, सूचर्स भी बोलते हो। क्या बोला जाता है बच्चों ऐसे जॉइंट्स को, दे आर ऑल्सो नोन एज योर सूचर्स, SUTURES, important, write it down, can come into examinations directly, that too. Which of the following joints could be considered as sutures? So they would be your immovable joint. अब immovable joint में कोई से भी immovable joint का वो example दे देंगे, बोलेंगे बताओ इस joint को क्या बोलोगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करूँ, हमारे teeth, ठीक है, they are fitted in a socket of jaws। ठीक है, हमारे टीथ के और हमारे जॉ में, ठीक है, जो है टीथ क्या होते हैं, फिटेड होते हैं, इस तरीके से अंदर घुसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं ना। ठीक है, तो बेसिकली ये भी क्या फॉर्म कर रहा है, जॉइंट फॉर्म कर रहा है ना। ठीक है, बट आर दे मूवेबल, क्या हमारे टीथ इधर से उधर एक दूसरे से मिलने जाते हैं, निकल के बाहर आते हैं, ऐसा नहीं होता है, राइट। पता चला खा रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, पता नहीं चल रहा कौन कहां पर है। नो, देयर लोकेशन इज फिक्स्ड, इजंट इट? सो वहां पे वो जॉइंट क्या है बच्चों, इमूवेबल है ना, इट डजंट मूव, राइट। ठीक है, सो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट। सो यू कैन राइट डाउन द एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी जो बच्चों स्कल बोन होती है ना, क्या होती है, हमारी स्कल बोन होती है ना, तो वो भी काफी सारी बोन्स को ज्वाइन करके बनती है। ठीक है, क्या करके बनती है, काफी सारे जॉइंट्स बिटवीन दी बोन्स ऑफ द स्कल। हमारा जो ये स्कल है, ओके, दिस स्कल इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वेरियस बोन्स। तो उन बोन्स के बीच में भी क्या होते हैं, आपके जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, योर फ्रंटल, योर पैराइटल, योर टेम्पोरल एंड योर ऑक्सीपिटल। ठीक है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल, पीछे की तरफ। ठीक है, ऑक्सीपिटल, ऑलराइट। सो ये सारी डिफरेंट, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, गिविंग एन एग्जांपल। तो ये सारी बोन्स जहां पे ज्वाइन होती है ना, उनको, उन एरियाज को बोला जाता है सूचर्स। किस तरीके से होते हैं, देखो इस तरीके से। ठीक है, उनको इसीलिए सूचर्स बोला जाता है, बिकॉज जॉइंट्स हैं बट ऑफ कोर्स मूवेबल नहीं है। ऑलराइट, चलो जी आगे बढ़ते हैं, इजी सा है ना। कैन यू सी दिस, यहां पे देखो, यहां पे सूचर्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, ओके, दिस वन, या देखो ये लाइन देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे ये इस तरीके से जिगजैग, ये देखो इस तरीके से, ये रहा आपका जॉइंट। बेसिकली ये है आपकी, अगर मैं यहाँ बताऊं, दिस इज योर फ्रंटल बोन। विच वन, दिस इज योर फ्रंटल बोन। ठीक है, कौन सी बोन है, फ्रंटल। दिस इज योर टेम्पोरल बोन, है ना। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट नो इट, ऑलराइट। यू डोंट नीड टू नो दी नेम्स ऑफ दीज बोन्स, बट इज जस्ट दैट फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू। तो जैसे आप ये देख रहे हो, यहाँ पे कनेक्शन देख रहे हो, यानी कि एक स्कल का बोन दूसरे स्कल बोन से कैसे जुड़ा हुआ है, देखो इस तरीके से सूचर से, है ना। सो देयर इज अ जॉइंट इन बिटवीन, लेकिन क्या है, इमूवेबल है ना, हमारा स्कल फिक्स होता है, राइट। सो इंपॉर्टेंट मूवेबल जॉइंट्स ऑफ आवर बॉडी, इंपॉर्टेंट मूवेबल जॉइंट्स ऑफ आवर बॉडी कौन से होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट। राइट डाउन एंड देन आई विल लेट यू नो व्हाट एग्जैक्टली आर दे। राइट डाउन, कौन कौन से मूवेबल जॉइंट्स, कितने टाइप, कितने वैरायटी के मूवेबल जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, दे आर योर बॉल एंड सॉकेट, हिंज एंड पिवट। ओके, बॉल एंड सॉकेट, हिंज एंड पिवट। राइट डाउन,
ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लेके चलूँ एक चीज का, वो है क्या कि देखो हमारा जैसे शोल्डर जॉइंट है, ठीक है, हम इसको यहाँ पे कर पा रहे हैं, ठीक है, हम इसको इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर पा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर पा रहे हैं, हम इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं, हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। सो कैन यू सी द वैरायटी ऑफ मूवमेंट दिस जॉइंट इज ऑफरिंग अस, राइट। सो दैट्स व्हाट इज रिटन हियर कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में बेसिकली, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, सी जो ये जैसे नेम आपका इंडिकेट करता है, ठीक है। सो इसमें क्या है ना, आपका इस जॉइंट में क्या होता है बच्चों, इस जॉइंट में आपका क्या है कि इन दिस जॉइंट बॉल शेप्ड वन एंड ऑफ अ बोन फिट्स इनटू अ कैविटी ऑफ अनदर बोन, यानी कि ठीक है, हमारी अगर मैं शोल्डर की बात करूं तो बेसिकली बच्चों बॉल एंड सॉकेट क्यों बोला, ये सॉकेट, राइट, सी दिस इज द सॉकेट। सो ऐसी जो भी बोन जिसका जो हेड है, क्या हेड है, उसका एक एंड कैसा होगा, बॉल शेप्ड एंड, ठीक है, दूसरे बोन की सॉकेट शेप्ड कैविटी में आके फिट होके जैसे आर्टिकुलेट करेगा, उससे जितने भी मूवमेंट्स वो बनाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। सो बेसिकली हमारा शोल्डर जॉइंट जो है दैट इज योर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसीलिए इसको क्या बोला गया बच्चों, दैट इज व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड एज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। इसी वजह से एक एंड जो है हमारी बोन का कैसा होता है, बॉल शेप। तो अगर बॉल शेप से मैं याद करूं, ठीक है, बॉल शेप से हम लोग को एक बोन याद आ रही है बच्चों जिसका हेड हमने अभी पढ़ा था लेग्स में, इफ यू रिमेंबर, लेग्स में जिसका हेड क्या था, कैसा था, बॉल शेप था, राइट, वी स्टडीड अबाउट इट, इजंट इट। एंड कौन सी बोन थी, लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, दैट इज योर थाई बोन, विच इज योर फीमर, है ना, ठीक है, विच इज योर फीमर, ऑलराइट। तो इसीलिए फीमर भी जो जॉइंट बनाती है, जैसे हमारा शोल्डर है वो भी कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सिमिलरली हमारा जो हिप जॉइंट है, कौन सा जॉइंट है बच्चा लोग, हमारा जो हिप जॉइंट है वो भी आपका हो गया बॉल एंड सॉकेट वैरायटी, ऑलराइट, ठीक है ना। So now the ball shaped and can be moved freely in many directions। जी, हम लोग बहुत सारे डायरेक्शन में अपने आर्म को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। बॉलर्स को देखा है कुछ कुछ तो बिल्कुल ऐसे करके ऐसे ही डाल देते हैं ना, वाई, बिकॉज ऑफ दी वैरायटी। हाउएवर ये हमारा जॉइंट जो होता है बहुत फ्रेजाइल भी होता है बच्चों, शोल्डर जॉइंट है ना, डिसलोकेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। डिसलोकेशन मतलब कि जो बॉल शेप्ड हेड होता है ना बोन का, वो इस सॉकेट से अभी तो क्या है, इसमें प्रॉपर्ली आर्टिकुलेट कर रहा है, हम सबका प्रॉपर्ली आर्टिकुलेट कर रहे हैं, बहुत सारे मोशंस कर पा रहे हैं। एट टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि ये सॉकेट के लिए बना होता है बच्चों, ठीक है, बट एट टाइम्स ये बाहर निकल के आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन, राइट। इट्स अ लिटिल बिट फ्रेजाइल जॉइंट, ऑलराइट। अब जैसे एग्जाम्पल, जॉइंट बिटवीन पेक्टोरल, राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। पहला आता है बच्चों आपका शोल्डर जॉइंट, कौन सा आता है आपका, शोल्डर जॉइंट। क्यों, और शोल्डर जॉइंट किससे मिलके बना है, आपकी ह्यूमरस, है ना, ह्यूमरस जो थी हमारी बोन, रिमेंबर फ्रॉम योर शोल्डर टू दी एल्बो ह्यूमरस था, ह्यूमरस का भी अपर एंड जो है दैट इज योर बॉल शेप्ड एंड इट फिट्स इनटू दी pectoral girdle at your shoulder, all right। So write down the example, this is your shoulder joint, which joint, shoulder joint, ठीक है। शोल्डर जॉइंट किससे मिलके बना, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, पेक्टोरल गर्डल एंड अपर एंड ऑफ दी ह्यूमरस, शोल्डर जॉइंट, है ना। फिर एक हो गया आपका कौन सा, यहाँ पे हो गया आपका ये हिप जॉइंट, कैसे, पेल्विक गर्डल और थाई बोन, यानी कि फीमर, द लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी वी स्टडीड, है ना, उसके बीच में जो जॉइंट है वो भी है आपका बॉल एंड सॉकेट, राइट डाउन। सो उसमें ह्यूमरस और फीमर का जो अपर एंड है, जो हेड है, किसका बना हुआ है, बॉल शेप्ड एंड है, इस तरीके से। कैन यू सी दिस, सी, ऑलराइट, ठीक है। लिख ले एग्जाम्पल, बड़े क्या, shall we move ahead, ऑलराइट, there we go। hinge joint क्या होता है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे if I take an example, okay, देखो अभी अगर मैं अपने आर्म को ऐसे करती हूँ, ठीक है, so I can move this elbow
लाइक दिस, लेकिन है ना कितना ले जा सकती हूँ 180 डिग्रीज, राइट, फ्रॉम ईयर, फ्रॉम द शोल्डर टू ईयर 180 डिग्री हो गया. वी कैन ऑल्सो कीप इट लाइक 90 डिग्री, बट 180 से नीचे नहीं जा सकता, है ना. इट कैन नॉट गो बिलो 180 डिग्रीज, राइट, इट कैन नॉट गो, है ना. सो ऐसे जो जॉइंट्स होते हैं जैसे कि हमारा एल्बो, सिमिलरली नी, अगर आप नी की बात करोगे तो आप इसको कहां से कहां तक ले जा सकते हो. सिमिलरली नी ऑल्सो यू कैन मूव इज लाइक 180 डिग्रीज, बट नॉट अबव दिस. ठीक है, कभी आपने नी को यहां पे टच किया है क्या, लाइक वहां से बिल्कुल टिल्ट करके मोड़ के, नहीं हो सकता, है ना. सो क्या होता है, इसको आप पूरा रोटेट नहीं कर सकते. इट कैन नॉट बी रोटेटेड लाइक द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, है ना. आप रोटेट कर सकते हो इसको, नो, यू कैन नॉट टेक योर एल्बो बियॉन्ड दिस. इस जॉइंट को यहां से आप नीचे तक ऐसे नहीं लेके जा सकते. क्या होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, राइट, है ना. तो ऐसे जो जॉइंट्स हैं दे कैन बी कंपेयर्ड विद द हिंजेस ऑफ डोर्स ऑफ आवर हाउसेस, है ना. ठीक है. सो बच्चों हिंज जॉइंट में क्या होता है, जो बल्की एंड होता है, द बल्जी एंड ऑफ अ बोन फिट्स इनटू अ कॉनकेव डिप्रेशन ऑफ अदर बोन. राइट इट डाउन. व्हाट्स हैपनिंग इन हिंज जॉइंट इज दैट द बल्जी एंड, व्हाट, the bulgy end of a bone fits into a concave depression of the other bone. This allows the bone to move in one direction only. Important. This allows the bone to move in the single direction only. जैसे कि आपका knee joint and elbow joint. ठीक है, write it down. Write it down. ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, सी हमने यहाँ पे एक हिंज का एग्जाम्पल ले लिया. किसका एग्जाम्पल ले लिया, हिंज का एग्जाम्पल ले. सिमिलरली देखो यहाँ पे ये एक बोन के समान है ना. सो दिस इज व्हाट, दिस इज लिटिल बिट बल्की, है ना. और ये जो नीचे डिप्रेशन है, कैसा डिप्रेशन है बच्चे लोग, दिस इज अ कॉनकेव डिप्रेशन, इस तरीके का, है ना. सो एक बोन का कॉनकेव डिप्रेशन होगा जिसके अंदर दूसरी बोन का बल्जी एंड जाके फिट होगा. इसीलिए इसकी इस कॉनकेविटी की वजह से क्या आ गए, रेस्ट्रिक्शंस. तो ये सिर्फ इतना ही मूव कर सकता है, यहां से लेके यहां तक, दैट इज योर 180 डिग्री. ठीक है. सो कौन से एग्जांपल हुए हिंज जॉइंट के, नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट. चलो मूविंग अहेड, योर पिवट जॉइंट. पिवट जॉइंट क्या होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. पिवट जॉइंट के बारे में लिखो बच्चों. सम rotational movement around an axis are possible in such type of a joint. Our heads can be moved towards left, right, upwards and downwards up to a certain extent. ऐसे जो हैं आपके वर्टिब्रा में पाए जाते हैं. So basically pivot joints में क्या होता है बच्चों कि एक एक्सिस, क्या, एक एक्सिस जिसको हमने बोला क्या, पिवट, है ना. तो उसके टूवर्ड्स बेसिकली मूवमेंट. नाउ कैन यू टेक एन एग्जांपल ऑन योर ओन सेल्स. ऑलराइट, हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ये हमारा हेड है और ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है. तो हेड के और वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है, हमारी नेक अगर हम लेके चले, यहां पे जो जॉइंट है, व्हाट कैन वी डू इज वी कैन डू इट लाइक दिस, we can do it like this and also we can rotate it this way, right. So this is your pivot joint. So basically rotational movement around an axis, okay, यानी कि axis would be fixed, right, the axis would be fixed, उसके around हमारा head क्या कर रहा है, rotate कर रहा है, right. So this is your pivot joint, है ना. rotational movement around an axis are possible in such type of a joint. ठीक है, जैसे कि हमारा हेड मूव कर रहा है लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, है ना. सो यहाँ पे एक्सिस क्या है बच्चों, फिक्स्ड है, लेकिन उसके ऊपर जो बोन है वो सारे डायरेक्शंस में मूव कर पा रही है. सो एक्सिस वुड बी फिक्स्ड. सिमिलरली लाइक आवर वर्टिब्रल कॉलम एंड द जॉइंट बिटवीन द फर्स्ट वर्टिब्रा, वर्टिब्रल कॉलम का फर्स्ट वर्टिब्रा, जो कि जिससे कि क्या होता है, स्कल हमारा कनेक्टेड है इन आवर नेक, हियर समवेयर हियर. ठीक है. एंड दी सेकेंड वर्टिब्रा, first vertebra, second vertebra and the skull. Okay, these are called your pivot joints. Write down the example, quick, जल्दी, एक ही लिखे, एक ही है, जल्दी से लिख लो. All right, that is your pivot joint. Rotational movement around an axis, with the axis is fixed, okay, and that are your pivot. Axis is also called as your pivot. That is your pivot joint. Example, first vertebra, second vertebra holding the skull, है ना. इसीलिए हम अपनी मुंडी को इधर उधर घुमा सकते हैं, कर सकते हैं ना, ऐसे ऐसे गोल 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 ऐसे. ठीक है, ठीक है. एंड लेट अस नॉट कंपेयर रावण विद दिस. ओके, रावण का अलग केस है.
सो यहाँ पे रावण वाले सर नहीं लेने, ठीक है, लेट अस टेक नॉर्मल वाला, हमारा जो ह्यूमन वाला, ऑलराइट, ठीक है बच्चा लोग, आई होप दिस इज क्लियर, है ना। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया द जॉइंट्स ऑफ योर लेग्स, इंपॉर्टेंट, ठीक है, 30 बोन्स जैसे हमने एक आर्म में पढ़ी थी, सिमिलरली 30 बोन्स इन योर लेग्स एज वेल, 16 बोथ अपर लिम्स एंड 60 बोथ इन दी लोअर लिम्स। क्या क्या नाम थे, कैसे कैसे हमने टर्मिनोलॉजीज फ्लक्चुएट किया, है ना। आर्म में आ गया था आपका क्या, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स। सिमिलरली लेग्स में क्या आ गया था, टार्सल्स एंड मेटाटार्सल्स, ऑलराइट। सो लेग्स में बस ये था कि जो एंकल बोन्स हैं वो 7 इन नंबर थी, दैट आर योर टार्सल्स, बट आर्म में जो रिस्ट बोन्स हैं दैट इज योर कार्पल्स, ठीक है, ये 8 हैं, और मतलब यानी कि रिस्ट जॉइंट, जो हमारा रिस्ट होता है वहां पे 8 बोन्स हैं, और जो हमारा एंकल है, ठीक है, वहां पे 7 बोन्स हैं। तो आई होप आपने टेबल अच्छे से बनाया है, एंड यस इट्स वेरी इजी गाइज, वेरी इजी। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा उनकी टर्मिनोलॉजीज देखनी है, किस बोन को क्या बोला, इंपॉर्टेंट हमने सूचर्स किनको बोला था, ठीक है, लार्जेस्ट बोन किसको बोला था, कौन से जॉइंट्स, कितने टाइप के जॉइंट्स हमने आज देखे, राइट, बॉल एंड सॉकेट, यू गॉट हिंज देन पिवट, उनमें हमने क्या एग्जांपल देखे, इजी इजी एग्जांपल्स थे, ऑलराइट। सो प्लीज उस चीज को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट, एंड यस इसके बाद we'll be studying about the muscles, all right, so in the next class. Until then please let me know how you like this video, and कैसा लग रहा है आपको biology. I really would like to know about it. Just do drop your comments in the comment section, and also अगर whatever your personal reason is, whatever it is, if you're liking me, if you like the way I teach biology, if you're enjoying biology foremost, then you can just hit that like button in case if you do, and also subscribe to the channel of Talking Textbooks Code Alive, leaving no child behind, अगर अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है ना, कर लेना, ओके, और बेल आइकन प्रेस कर दोगे तो अपडेट्स भी मिल जाएंगे। तो सबको पता ही है, सब लोग यू नो टेक गुरुज हो यहाँ पे, जितने भी लोग इस वीडियोस को देख रहे हो, आई नो दैट वेरी वेल, है ना। हाँ, रैपर्स के, म्यूजिक के, कैरी मिनाटी के वीडियोस, इन सब के लिए तो हम बहुत जल्दी कर देते हैं, राइट। सो प्लीज अभी पढ़ाई पे ध्यान दे लेते हैं थोड़ा सा, ऑलराइट। सो यस, एंड गाइज अगेन तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। इट्स बिकॉज ऑफ यू ब्यूटिफुल, योर ब्यूटिफुल कॉन्ट्रीब्यूशन दैट यू नो आई मेंटेन दिस एनर्जी हियर guys. So of course I'll see you later in the next lecture, which is most probably gonna be the last one for this, all right. So अगला बिल्कुल लास्ट है, फिर उसके बाद क्विकली रिविजन करेंगे, एंड देन इट्स ऑल डन, ठीक है। फिर अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, यस, मजे करते रहो, all right. So yes, this is Dr. Gitanjali Sharma signing off. Loads of love and blessings to you guys. I'll see you later. Bye bye.